ان کے کمزور رد عمل کو دیکھتے ہوئے میں نے باقاعدہ انہیں گھورنا شروع کر دی۔ راستہ تنگ تھا، وہ دونوں مجھے راہ دینے کے لیے سرک کر دیوار سے لگ گئے۔ میں نے یہ نکتہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ ان میں سے کسی کا ہاتھ جیب کی طرف نہیں گیا تھا۔ میں نے ان سے نہ الجھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ وہ پہل کرتے تو میں جی چاند سے ان کا مقابلہ کرتا۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے وجود میں غصے کی ایک شدید لہر ابھری اور میں کسی ارادے کے بغیر اچانک ان کے سامنے رک گیا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ میں نے زہر آلود لہجے میں ان سے سوال کیا۔ تھائی زبان میرے لیے اجنبی تھی، میں نے انگریزی کا سہارا لیا تھا۔ میں رکتے ہی ان کے چہروں پر یتیمی سی برسنے لگی۔ دبلے شخص نے اپنے قدر فرباز ساتھی سے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کی زبان چل پڑی۔ یو تورست سنگل وانت گال ویری بیوٹیفل۔ وہ میری طرف جھک کر خستہ و شکستہ انگریزی میں جملوں کے بجائے الفاظ بولتا چلا گیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنی کہانی شروع کر دی تھی۔ اس کے نپے تلے الفاظ اتنے بھرپور تھے کہ اسے اپنا مفہوم سمجھانے کے لیے فکروں کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اس کی زبان سے وہ خرافات سنتے میرا اعصابی تناؤ دور ہو گیا۔ وہ بینکاک کے گشتی دلالوں کی بولی بول رہا تھا، مگر میرے ذہن نے اس کی تعویل کو قبول نہیں کیا۔ آج کا بینکاک ان غلاظتوں سے کافی حد تک پاک ہو چکا ہے، لیکن ان دنوں بھی میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ جنس فروش کارندے کسی بھی غیر ملکی کو زبردستی نہیں پھانستے تھے۔ موقع ملتے ہی اپنی بات شروع کرتے اور حوصلہ افزا جواب نہ ملے تو اس موضوع کو یوں بھول جاتے تھے جیسے اس بارے میں سرے سے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، جبکہ وہ دونوں کافی دیر سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں وہ چاہتے تو 10-20 افراد سے ملاقات کر کے اپنا مطلب کے کئی گاہک تلاش کر سکتے تھے۔ البم نکالو، میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے سختی سے مطالبہ کیا۔ اگر وہ وہی تھے جو خود کو ظاہر کر رہے تھے تو ان کے پاس 2-4 تصویری البم ہونے چاہیے تھے۔ نو البم۔ فربائی شخص کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ یو کم سی گرلز ویری گڈ۔ انہیں چھیڑ کر مجھے اپنی وحشت ناک ذہنی پریشانی سے نجات مل گئی تھی، لیکن میں عجیب مخمصے سے دوچار ہو گیا تھا۔ بات کھل چکی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ دونوں صورت حرام ہونے کے باوجود جارحانہ موڈ میں نہیں تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بلکہ ان میں سے صرف ایک اپنے مطلب کی محدود انگریزی سے واقف تھا۔ اس گزرگاہ پر رک کر ان دونوں سے بات پر اس کی کوشش کی جاتی تو میں خود وہاں تماشا بن جاتا۔ میں کھیت کی کہتا تو وہ کھلیان کی سمجھتے۔ میں نے تیش اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں ہاتھ گھما دیا۔ ایک آدھ تھپڑ رسید کیے بغیر انہیں درگزر کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ دونوں میری طرف سے کسی زیادتی کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ دونوں ایک ساتھ مجھے جھکائیتے گئے اور میرا ہاتھ فضا میں گھوم کر رہ گیا۔ اگلے لمحے ان دونوں نے پوری قوت سے ایک طرف توڑ لگا دی اور میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ آس پاس سے گزرنے والوں نے حیرت اور مسرت سے ملی جلی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بعض لوگ سمجھے کہ وہاں کوئی مذاق ہو رہا تھا۔ 1-2 سیٹیاں بجیں، چند آوازیں کیسے گئے اور میں سخت خفت کے عالم میں ہوٹل کی طرف چل دیا۔ میرے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنی صبح کا منظر دیکھنے والوں کی نظروں سے جلد از جلد دور نکل جاؤں۔ وہ دونوں بھی نہر پار کرنے کے بجائے اسی طرف بھاگے تھے جدھر میں جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اتنی تیزی سے دوڑ لگائی تھی کہ ان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اس واقعے سے میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں خبیثوں کو کس خانے میں فٹ کروں۔ وہ دوست ہوتے تو چوروں کی طرح چھپ کر میرا تعاقب نہ کرتے، دشمن ہوتے تو خطرناک تیور دکھائے بغیر اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہ چھوڑتے۔ جب تک وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے میں تشویش اور سنسنی میں مبتلا تھا۔ بھاگنے کے بعد وہ اپنے پیچھے کئی الچھاوے چھوڑ گئے تھے جن کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ذہنی پریشانی کے عالم میں ہوٹل نہیں جانا چاہتا تھا۔ نئی پریشانی میں غزالہ کو شامل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اس بے سر و پا واقعے کے بارے میں کوئی رائے تو کیا دیتی، مجھ سے زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میں نے ہوٹل کے احاطے میں داخل ہونے کے بجائے سیدھی راہ اختیار کر لی۔ میرے ذہن میں یہ خدشہ بستر ابھار رہا تھا کہ میرے باہر رہنے کی صورت میں اس جیسا حیران کن واقعہ دوبارہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ میں ہوٹل سے کچھ آگے بڑھا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے تیز ہارن کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت قریب کی تھی۔ میں نے ناگواری سے پلٹ کر دیکھا تو چاؤفان کی کالی آکارڈ فٹ پاتھ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کا انجن چل رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھا کسی بندر کی طرح شوخی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے برابر والی نشست پر لی بہت بنی سوری بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے نظریں چار ہوتے چاؤفان نے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلایا اور دروازہ کھول کر اپنی گاڑی سے اتر آیا۔ اس کا ایک پیر سڑک پر اور دوسرا پائیدان پر تھا۔ میں جو ہی گاڑی کی طرف بڑھا، دی بھی اپنے ہونٹوں پر دلاویز مسکراہٹ سجائے گاڑی سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ گزرے ہوئے واقعے پر بات کرنے کے لیے چاؤفان نہایت موزوں تھا۔ لی نے وائٹ ہاک کی تباہی پر کھل کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔
इसके साथ राजन के खिलाफ जिस अंदाज में बातें होती रही थी, इनके बिना पर वो बड़ी हद तक हमारी राजदा बन चुकी थी। इसकी मौजूदगी मेरे और चाउफान के मुज़ाकरात में रुकावट नहीं थी। हाय मास्टर, मेरे करीब पहुंचते ली ने वालियाना अंदाज में कहा, इस सुहानी शाम में अकेले ही घूम रहे हो? मैंने दूर से तुम्हें देखकर पहचान लिया, वरना चाउफान तेजी से यहां से निकला जा रहा था। ये गाड़ी यूं तो उड़ाता है जैसे कहीं डाका डालकर भाग रहा हो। चाउफान बड़ा डकैत है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खूबसूरत औरतों को लूटना इसका महबूब तरीन मशगला है, इससे होशियार रहना। गैर मुतवक्का तौर पर इन दोनों से मुलाकात होते ही मेरा मूड खुशगवार हो गया। वो दोनों हंस दिए। ली पिछली नशिस्त पर बैठ गई। मैंने उसकी खाली की हुई जगह संभाली। मास्टर, क्या बात है, तुम इस वक्त अकेले नजर आ रहे हो? चंद सानियों बाद चाउफान ने फिक्रमंद लहजे में सवाल किया। क्या मेरे साथ जलूस होना चाहिए था? मैंने इस्तज़ाई अंदाज में पूछा। तुम्हारे साथ औरतों का जलूस हो तो वो भी कम होगा, ली शौकी से बोली। तुम इन्हें खुश करने का फन जानते हो। मैंने 2 आदमी तुम्हारी हिफाजत पर मामूर किए थे। चाउफान उसके तबसरे को नजरअंदाज करके पुरतशवीश अंदाज में बुड़बुड़ाया। वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इसका वो इंकिशाफ सुनकर मेरा दिल चाहा कि इसका गला दबोच लूं। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, वो मेरी हिफाजत कर रहे थे या निगरानी पर लगाए गए थे? क्या तुमने उन्हें देखा है? उसने बेताबाना अंदाज में सवाल किया। सिर्फ देखा नहीं बल्कि भुगता भी है, मैंने गुस्से से तकरीबन फटते हुए जवाब दिया। वो इस कदर भोंडे अंदाज में मेरे पीछे लगे हुए थे कि मुझे उनसे उलझना पड़ गया। वो इतने बुज़दिल थे कि मुझसे सामना होते ही भाग गए। ओह, ये बुरा हुआ, वो बेसाख्ता बोला। गलती मेरी थी, मुझे तुमको बता देना चाहिए था कि तुम्हारी हिफाजत पर 2 आदमी मामूर किए गए हैं। तुम दोनों किन आदमियों का जिक्र कर रहे हो? ली ने इठलाई हुई आवाज में सवाल किया। मुझे तुम्हारी इन बातों से घबराहट हो रही है। डार्लिंग, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। चाउफान ने फौरी तौर पर फिदवियाना लहजे में उसे तसल्ली दी। ये मामलात हमें तुम्हें घर छोड़ने के बाद तय कर लेंगे, अब इन पर कोई बात नहीं होगी। बज़ाहिर चाउफान ने ली को मुखातिब किया था, लेकिन वो मेरे लिए भी इशारा था कि ली की मौजूदगी में इस मौजू को थूल न दिया जाए। मैंने नागवारी से खामोशी इख्तियार कर ली। उसने मेरे कुर्बो जवार में अपने आदमियों को मौजूद न पाकर अपने फितरी बेचैनी का इजहार किया और लम्हा भर में यह बात वाज़ेह हो गई कि वो दोनों चाउफान के कारिंदे थे। वो अपने तौर पर कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। यकीनी तौर पर उसने डान के अमा पर अपने आदमी मेरे पीछे लगाए थे। बात निभाने के लिए उसने मेरी हिफाजत का जिक्र किया था, लेकिन मैं इस वजाहत से मुतमईन नहीं था। जब राजन जिंदा था और मुझे वाकई तहफ़्फ़ुज़ दरकार था तो इन लोगों ने मुझे मैदान में तन्हा छोड़ा हुआ था। संगीन खतरा टल जाने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था तो खामोशी से 2 आदमी मेरे पीछे लगा दिए गए। मेरे लिए वो सूरत अहवाल तशवीशनाक थी। चाउफान के अतराफ से यह जाहिर हो रहा था कि डान ने मेरे बारे में अपने शुकूक शुबहात को बहुत कामयाबी से छुपा लिया था। वो गुर्गे बारह दीदा था। उसने मुझ पर यह जाहिर किया था कि मेरी तरफ से उसका दिल साफ हो गया था, मगर उसने फौरी तौर पर मेरी निगरानी का बंदोबस्त करके यह साबित कर दिया था कि उसके बारे में मेरे खदशात बेबुनियाद नहीं थे। मास्टर, तुम दोबारा मुझसे मिलने नहीं आए? चंद लम्हों की खामोशी के बाद ली ने लगावट के अंदाज में वो सवाल करके मेरे ख्यालात की रो तोड़ दी। मैं दोस्तों की हक तलफी नहीं करता। चाउफान तुम्हारी दोस्ती का पहला हकदार है। मैं इसकी कोशिशों को बार आवर होता हुआ देखना चाहता था। पूछ लो, इसे मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ली अपने मरासम के इजहार के बारे में मेरी तवक्का से ज्यादा बेबाक थी। मैं भी दोस्तों की कदर करती हूँ। इसे सताने में मुझे लुत्फ आ रहा था, लेकिन वाइट हाक वाले वाक़े के बाद मैंने इसकी सारी शिकायतें दूर कर दी। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी दोस्ती पर फख्र महसूस करने लगा हूँ। चाउफान ने तशक्कुर अमेज लहजे में कहा। तुमने मेरी जिंदगी में रंग ही रंग बखेर दिए हैं। मास्टर, तुमने सुन लिया, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती। चाउफान मुझे कुछ बताने पर आमादा नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि छोटा राजन को तुम लोगों ही ने जीते जी जहन्नुम की आग में जलाया है। वो इससे ज्यादा बुरी मौत का मुस्तहिक था, और कुछ नहीं तो इसकी मौत की खुशी मनाने के लिए किसी शाम मेरे घर आ जाओ। दूसरों को खुशियां बांटने वाली एक औरत को क्या तुम इतनी खुशी भी नहीं दे सकते? तुम फिक्र न करो, मुझसे पहले चाउफान बोल पड़ा। मैं मास्टर को तुम्हारे पास लाऊंगा। फिलहाल मैं पार्टी की तैयारियों में मसरूफ हूँ। इससे निमटने के बाद मुझे और मास्टर को फुर्सत ही फुर्सत होगी। तुम्हारी सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। पार्टी में मैं डान को पहली मर्तबा करीब से देखूंगी। सुना है कि वो भी बहुत शानदार आदमी है, मगर औरत की इज्जत करना नहीं जानता। ली बोली। मादाम ये क्या कह रही हो? चाउफान ने हैरत से दीदे फाड़ कर कहा। डान से ज्यादा कौन औरत की इज्जत करेगा? सारे शहर को मालूम है कि अपनी बीवी से सरे बाजार पिटने के बावजूद उसने अपनी औरत पर हाथ नहीं उठाया। वो मरी है तो अब डान ने गोशा नशीनी तरकी है। इन बातों को रहने दो। वो औरत पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अपनी जहरीली जुबान से उसके चीथड़े उड़ा देता है। वो अल्फाज को कोड़ों की तरह इस्तेमाल करता है। ली सुनी सुनाई बातें दोहरा रही थी, लेकिन वह हकीकत पर मबनी थी। इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू होने के नतीजे में ली के मुतालबे से मेरी जान छूट गई। इन्होंने दौरान गुफ्तगू पार्टी का जिक्र करके मेरे कान खड़े कर दिए थे।
कराइन बता रहे थे कि वो डान की वापसी के जश्न का तज़किरा था। डान ने इसी के इंतजार में मुझे रोका हुआ था। पार्टी के इनेकाद के बाद डान के लिए मुझे बैंकॉक में रोकने का कोई चवाज न रहता। मुझे तवक्का थी कि ससना में जलाल की तरफ से हम चारों के नए पासपोर्ट भी आ जाएंगे और हम नए नामों के साथ थाईलैंड को अलविदा कह सकेंगे। बातों बातों में ली का घर आ गया। इसे पोर्च में उतार कर चाउफान ने वापस हो लिया। तुम इस लिफंगी के साथ कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? मैं ली के घर से निकलते ही चाउफान से सवाल किया। शानदार सवाल है, चाउफान ने हल्का सा कहका लगाकर कहा। मास्टर, किस्सा यह है कि मादाम के शहर की सारी मुअज़्ज़ज़ लफंगियों से गहरे मरासिम हैं। इनमें मॉडल से अदाकाराएं तक शामिल हैं। डान ने जश्न के लिए परसों की तारीख मुकर्रर कर दी है। मैं मादाम के साथ चीदा हस्तियों को दावत देने के मिशन पर निकला हुआ था। राजन की मौत पर यूं खुला जश्न मनाकर कहीं डान खतरा मोल न ले रहा हो। सब जान लेंगे कि उसी ने राजन को मरवाया है। मैंने कहा, यह बात सिर्फ चंद करीबी लोगों को मालूम है। यह दरअसल डान की गोशा नशीनी खत्म होने की पार्टी होगी। डान के न चाहते हुए भी यह खबर बहुत तेजी से गर्दिश में आ चुकी है कि डान पर हाथ उठाने वाली औरत थुंगरी में एक ट्रक के नीचे कुचल कर मर गई और डान ने इस कुदरती इंतकाम की खुशी में अपनी गोशा नशीनी तर्क कर दी। पार्टी के बाद मैं यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाहूंगा, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। डान की मेहमानदारी का अनोखा अंदाज मुझे रास नहीं आएगा। तुम किस बात पर आजुर्दा हो रहे हो? उसने अनजान बनकर हमदर्दाना लहजे में पूछा। चाउफान, मेरे सामने तुम्हारी ये मक्कारी नहीं चलेगी, मैंने बिगड़ कर कहा। मैंने ली की मौजूदगी की वजह से अपनी जुबान बंद कर ली, वरना आज कुछ भी हो सकता था। मुझे ये पट्टी बढ़ाने की कोशिश मत करना कि वो दो आदमी मेरी हिफाजत कर रहे थे। मास्टर, तुम्हारा गुस्सा वजह है, सारी गलती मेरी है। मुझे तुमको पहले ही बता देना चाहिए था कि अब हर वक्त दो आदमी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसने नदामत से जवाब दिया। गलती नहीं, यह मेरे खिलाफ खुली साजिश है। वो मेरे नजरों में ना आते तो इस वक्त भी मेरा पीछा कर रहे होते। वो इतने बुज़दिल हैं कि इन्हें खुद अपनी हिफाजत के लिए दो चार आदमी दरकार है। वो मेरी क्या हिफाजत करते? मुझे किससे खतरा है? मैं डान से पूछूंगा कि क्या वो इसी तरह लोगों को अपना मेहमान बनाकर जलील करता है? तो मुझे जूते मार लो, लेकिन खुदा के लिए डान से इस बारे में एक लफ्ज भी ना कहना। वो मेरी चमड़ी गिरा देगा। वो बुखलाकर गिड़गिड़ाया। डान का ख्याल था कि गार्ड्स होंगे तो तुम आज़ादी और बेफिक्री के साथ शहर में घूम सकोगे। अगर मैं तुम्हारा ये झूठ मान लूं तब भी मेरा बाखबर होना जरूरी था। जब तक मुझे ये इल्म ना हो कि दो उल्लू के पट्टे मेरी हिफाजत कर रहे हैं, मैं कैसे बेफिक्र हो सकता था? बस मुझसे यही चूक हो गई। मैं अपने आदमियों को हदायत देकर मादाम की तरफ निकल गया। परसों वीकेंड है, लड़कियों की पहले से बुकिंग हो जाती है। मेरे पास वक्त कम था। मैंने सोचा कि तुम्हें बाद में बता दूंगा। तुम फिलबदी झूठ बोले जा रहे हो चाउफान। मेरा पारा चढ़ने लगा। तुम्हारे बताने की सिरे से जरूरत नहीं थी। इनको अपना काम शुरू करने से पहले मुझसे मिलना चाहिए था। मेरी मत मारी गई थी। यह आसान तरीका मेरे जहन में नहीं आया। वो हुज्जत करने के बजाय हर बात अपने ऊपर लिए जा रहा था। क्या यह मुमकिन है कि मुझे आज ही यह मुल्क छोड़ने की इजाजत मिल जाए? मैंने दांत पीस कर पूछा। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम्हें कौन रोकेगा? सब कुछ तुम्हारे और डान के दरमियान तय हुआ था। उसे बता दो तो मैं खुद तुम्हें रुखसत करूंगा। उसने होशियारी से काम लेते हुए मामला मेरे और डान के सर डाल दिया। मैं भी उससे बात करता हूँ। मैंने चिराग पा होकर अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। अरे 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 मास्टर, ये क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर ब्रेक लगाए और स्टीयरिंग काट कर गाड़ी अचानक सड़क के किनारे रोक दी। डान तुमसे इस अचानक फैसले की वजह जानना चाहेगा। तुम गुस्से में हो। मेरे बारे में तुमने कुछ कह दिया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। दिमाग ठंडा होने के बाद उससे जरूर बात कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसी वक्त मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। मैंने उसी रवानी में तेजी से हेलो कहा तो दूसरी तरफ से गजाला बोल रही थी। बाजार से वापसी पर मुझे कमरे में मौजूद ना पाकर वो फिक्रमंद हो गई थी। मैंने उसे बहुत मुख्तसर बात की, खैरियत का इत्मीनान दिलाकर कुछ देर में वापसी का वादा किया और फोन बंद कर दिया। इस दौरान में गाड़ी दोबारा हरकत में आ चुकी थी। तुम अपनी जुबान में बात कर रहे थे, तुम्हारी बीवी का फोन होगा। उसने अपनी आदत के मुताबिक औरत कहते कहते अपनी तस्दीक करते हुए राय जाहिर की। चाउफान, तुम डान के हुक्म के बंदे हो। मैंने उसके तबसरे को नजरअंदाज करके गहरी संजीदगी के साथ कहा। मुझे यहाँ रहना है, ना मैं डान के इक़्तिदार के लिए कोई खतरा बन सकता हूँ। इसे मुझसे जो काम लेना था वो पूरा हो चुका है। अपनी मक्कारियों को छोड़कर मुझे सच से बताओ कि मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं उसे तुम्हारे बारे में एक लफ्ज़ नहीं बताऊंगा। गजाला की बेमहल फोन कॉल की वजह से मेरा गुस्सा काफूर हो चुका था। संजीदगी के साथ चाउफान को टटोल कर मैं डान की सोच तक रसाई हासिल कर सकता था। तुम्हें मालूम है कि जब से तुम आए हो उसने मुझसे बात करना कम कर दिया है। जब भी तुम्हारा जिक्र आता है वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देता है। चाउफान ने पुरख्याल अंदाज में कहना शुरू किया। सच बात यह है कि वो तुम्हारी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर मुझे उकसाने की कोशिश करता है। उसकी शिकायत है कि मैं दिल लगाकर उसके लिए काम नहीं करता। हर वक्त शराब, जुए और औरतों की लत में मुब्तला रहता हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत वक्त गुजारा है। सच बताओ कि क्या यह दुरुस्त है? वो तुम्हारे साथ अक्सर ज्यादती करता है। मैंने हमेशा उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की है।
इस वक्त मेरी हमदर्दी उसे सच बोलने पर आमादा कर सकती थी। तुम्हारी तरफ से डॉन के जहन में कोई नई बात आ गई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछले शुबहात उसके जहन से धुलकर साफ हो गए थे। उसने कदरे तवाक्कुफ के बाद जवाब दिया, तुम उसके किन शुबहात की बात कर रहे हो? पुरानी बातें जो तुम्हारे सामने आ चुकी हैं। पहले उसे शक था कि यहाँ कुछ लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, सारी भाग दौड़ वो करते हैं, आखिर में तुम अपना काम कर गुजरते हो। फिर इसे तुम्हारी बढ़ती हुई कारगुजारी से शुबा हुआ कि तुम डैनी हो और नाम बदल कर इसे फरेब दे रहे हो। तुमने उसका ये वहम दूर कर दिया। मेरी तरफ से उसका जहन साफ है तो उसे मेरे पीछे आदमी लगाने की क्या जरूरत है? मैंने गहरा सांस लेकर पूछा। इस बार चाउफान कुछ नहीं बोला। उसे मेरे तहफ्फुज़ की जो रट लगाई हुई थी वो खत्म हो चुकी थी। खामोशी इख्तियार करके उसने ये तस्लीम कर लिया था कि वो निगरानी का मामला था। इस मामले में तुमसे एक भूल हुई है। कुछ देर बाद उसने भराई हुई आवाज में कहा, तुमने डॉन से अपने दोनों पासपोर्ट लेकर गलती की। जब तक पासपोर्ट डॉन के पास थे उसे ये तसल्ली थी कि इसकी मर्जी के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकोगे। अब मामला मुख्तलिफ है। उसने इतने तवील अरसे में पहली बार डॉन के मुकाबले में मेरी हमदर्दी में जुबान खोली थी। मैंने धीमी मगर पुरजोश आवाज में शिकवा किया, पासपोर्ट मैंने नहीं मांगे। राजन की मौत की खबर सुनने के बाद उसने खुद लौटाए थे। उसने पहले भी लौटाए थे और तुमने लेने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे याद दिलाया, क्या डॉन ने मुझे यहाँ अपना यरगमाली बनाया हुआ है? इसे तुम जैसे शेर दिल आदमी की जरूरत है। एक आध बार तुम्हें अपना दस्ते रास्त बनाने का जिक्र कर चुका है। उसने सोचते हुए जवाब दिया, मगर मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरा घर बार है, दूसरी जिम्मेदारियां हैं। मैं हर हाल में जल्द अज जल्द वापस जाना चाहता हूँ। मैंने एहतजाज किया। डॉन शाह ये नहीं चाहता। सारा इख्तिलाफ बस यही है। चाउफान ने अपना फैसला सुना दिया। यह तुम्हारा हक है। मैंने उसके लिए चंद रोज काम किया है। तुम 2 बरसों से बल्कि एक लंबी मुद्दत से उसके साथ अपनी वफादारी निभा रहे हो। अगर वो मुझे तुम्हारे सरों पर मुसल्लत करना चाह रहा है तो ये उसकी भूल है। इसके खिलाफ अंदर ही अंदर शोरश परवान चढ़ेगी और एक दिन अचानक कोई डॉन का गला काट कर उसकी जगह संभालेगा। मैं इसके साथ लगा रहा तो मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा। दोनों को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। मास्टर खामोश रहो, वो घुटी घुटी खौफजदा आवाज में बोला। इसे तुम्हारी इन बातों की भनक भी मिल गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम में से कोई नहीं बचेगा। मैं चाउफान पर नपे वार कर रहा था। इसके हर रद्द अमल पर मेरी गहरी नजरें थी। मेरी जहर फशानी पर उसने एतराज नहीं किया था। इसका सारा जोर राजदारी पर था कि मेरी इन बातों की भनक डॉन के कानों तक न पहुंचने पाए। यहाँ कौन है जो हमारी बातें डॉन के कानों में फूंकेगा? मैंने उसके रवैये से हौसला पाकर बात आगे बढ़ाई। तुम या मैं, हमें से कोई खुदकुशी करना पसंद नहीं करेगा। हमने डॉन का दिया हुआ मिशन पूरा कर दिया। अब अंदर ही अंदर घुटने की जरूरत नहीं। ये मौका हाथ आया है तो हमें खुलकर बात कर लेनी चाहिए। इसके पास मेरी कारकर्दगी का सिला यह है कि वो मुझ पर शक किए जा रहे हैं। तुम्हारी वफादारियों का इनाम यह है कि वो मुझे तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करने के मंसूबे बना रहे। चाउफान गाड़ी की आरामदेह सीट पर बैठा सुकून से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन उसके तनफ्फुस की रफ्तार यूं तेज हो गई जैसे वो दूर से दौड़ता चला आ रहा हो। उसने चढ़े हुए सांसों के दरमियान बेबसी से कहा, मास्टर तुम्हारी बातें दुरुस्त लेकिन खौफनाक है। खुदा के लिए अपनी जुबान बंद रखो। तुम डॉन को नहीं जानते। वो अपने आदमियों की सोच भी पढ़ लेता है। हम कर ही क्या सकते हैं? जो डॉन के सामने जुबान खोलेगा वो मारा जाएगा। डॉन के सामने जुबान खोलने की जरूरत नहीं। जिस तरह राजन इत्मीनान से मार डाला गया इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात जरा से हौसले की है। तुम हिम्मत करो तो सारे मामलात एक रात में सुधर जाएंगे। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की। नहीं मास्टर, मैं डॉन से बगावत नहीं कर सकता। उसकी जान निकली जा रही थी। डॉन से बगावत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसी खून खराबे के बगैर सब कुछ सुधर सकता है। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। मैंने उसे शीशे में उतारने की कोशिश शुरू कर दी। इतना कुछ कह जाने के बाद मेरे लिए पेशकदमी के सिवा कोई राह बाकी नहीं रह गई थी। बगावत और खून खराबा नहीं होगा तो तब्दीली कैसे आएगी? उसे किसी तनवीम ज़दा मामूल की तरह कमजोर आवाज में कहा, तुम ताउन का वादा करो, मैं सब कुछ समझा दूंगा। मैं उसे आमादा करने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। मैं डॉन के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसने लम्हा भर के लिए मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां नाच रही थी। मैं यकीन दिलाता हूं कि इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? वो ज़हनी परागंदगी का शिकार होता जा रहा था। सारा फतूर मेरी जात का है। मैं यहां से निकल गया तो डॉन के सामने सिर्फ तुम रह जाओगे। वो तुम्हें अपना दस्ते रास्त बना लेगा। मैंने उसे नीम आमादा पाकर कहा, मैं यहां रुकना नहीं चाहता। तुम यहां से निकलने में मेरी मदद करो। मैं बाहिफाजत तुम्हारे मुल्क की सरहद पार कर गया तो डॉन को जरा सी झुंझलाहट के सिवा कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम्हारी राह सीधी हो जाएगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सरहद पार पहुंचा दूं? मैं खुद फरार हो जाऊंगा। तुम परसों तक मेरी निगरानी करते रहो और गैर इरादी तौर पर मेरी आवाज धीमी होगी। अभी तुम बता रहे थे कि परसों डॉन का जश्न बर्पा होने वाला है। वहां मुझे भी बुलाया जाएगा। तुम जरा सी देर के लिए वहां अफरा तफरी पैदा कर दो तो मैं निकल जाऊंगा।
तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, मैंने उसे समझाया। ये पार्टी बैंकॉक से 20 मील दूर एक साहिली वीराने में होगी, उसने बताया। वहां किसी किस्म की अफरा तफरी फैलाना मुमकिन नहीं होगा। मुझे तफसील बताओ, मैं तुम्हें कोई ना कोई तरीका बता दूंगा। ये याद रखो कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। तुम्हारी सब बातें दुरुस्त हैं। ये बड़ी बात है कि तुमने कोई एहसान नहीं जताया। तुम जाना चाहते हो, मैं ऊपर आना चाहता हूँ। तुम्हारा मंसूबा भी काबिल अमल मालूम होता है। मुझे एक अंदेशा है कि फरार होते हुए तुम कहीं रास्ता न भटक जाओ। तुम उसकी परवाह मत करो, ये मेरा दर्द सर होगा।